अच्छा देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन एज 4 अपॉन n स्क्वायर. Write down the first three terms of the sequence expressing each term in its simplest format. So write down the first three terms of the sequence. Now it says the nth term of a sequence 4 upon n. Now 4 upon n में we understand कि जो n होता है, this always starts from 1. So the first value becomes 4. The second value for n is always 2. So then the value becomes 4 upon 4, which is equal to 1. And then the third value is 4 upon 2 to the power of 3, which is 4 upon 8. That makes it 1 upon 2. So the first term becomes 4. The second value is 4 upon 4 because Sir, it's, yeah. why would it be 2 cube? Won't it be 3 square? Oh, sorry. Yeah, correct. Okay, so then it's 4, and then the next value is 4 upon 4, which is equal to 1, and then the value after that is 4 upon 9. So that is how the values are. अच्छा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है the kth term in the sequence is given as 1 upon 100. Find the value of k. So again, kth term की वो बात कर रहे हैं. So what they're telling us is कि 1 upon 100 is equal to a certain term which is equal to 4 upon, and they're calling this as the kth term. मतलब n नहीं है, it's a k value, it's an unknown value. मतलब 4 upon n square, which is now replaced with 4 upon k square, is equal to 1 upon 100. So it's k square is equals to 4 multiplied by 100. That gives you the value as 400. And then we can do square root of 400. That makes it 20 only. Well, the answer actually is plus minus, but we don't have to consider plus minus because n की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, सीक्वेंस वैल्यूज हैं. तो सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का होता है, नेगेटिव वैल्यूज का नहीं होता. सो k इज इक्वल टू 20. नाउ, so this is one of the parts. Then it says, given that the mth term of the sequence is less than 0.0064. So now there is another term which they are saying is less than 0.0064. Find the smallest value of m. So now there is another term. I understand के जो sequence है वो है 4 upon n square. वो कह रहे हैं there is an m term. So we don't know the value of m, but that value is lesser than 0.0064. ये वो हमें बता रहे हैं. And they're saying कि find the smallest possible value of m. अब इसमें हमें क्या करना होगा? I will start cross multiplying the values. So this becomes 4, and then it's actually 40,000 divided by 64. How do I know that? क्योंकि 40,000 divided by 64 मैंने नीचे वाले डेसिमल सारे चेंज कर लिए हैं. Moving the decimal value, so 1, 2, 3, 4, that makes it 40,000. And then the next value will be m square is greater than. इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आप इसका स्क्वायर रूट कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है. इफ आई डू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू ताकि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकें, तो ये वैल्यू बन जाएगी 200 अपॉन 8. इफ यू सी इट इन दैट मैनर, 40,000 की वैल्यू है, 40,000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू 200 आ जाएगी. 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू बिकम्स 8. ये करने के बाद इट इज m इज ग्रेटर देन. नाउ वी कैन डिवाइड दीज वैल्यूज. And it says m is greater than 25. Now, m being greater than 25, they're asking for the first possible value. That should be equal to 26 because आपका आंसर 25 से बड़ा होना चाहिए. और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m. सो 25 से बड़ी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? दैट इज इक्वल टू 26. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया?
Yes. ओके, या ईमान, मैं इसको ये बता रहा था, आई वाज सेइंग कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40,000 डिवाइडेड बाय 64. So instead of cancelling out this value, I just took square root of this value, making it 40,000 का square root is 200, 64 का square root is 8. So once we do the square root of these values and then you cancel them out, it becomes 200 upon 8, which is equal to 25. So m is greater than 25. Now m being greater than 25. So the first value greater than 25. 25 में पहली बड़ी value कौन सी है after 25? That's 26. Now by that logic तो value 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, but यहाँ लिखा हुआ है find the smallest value of m. So smallest value का मतलब they are looking for the first available value after 25. That is 26. Yeah. All right, let's go over this. So इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी आ जाते हैं. इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं फिर कि हमने कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में वी हैव डिफरेंट वैल्यूज गिवन. कुछ हमें फिल करनी होती हैं, कुछ हम बाय ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं. तो दोनों ही केसेस होते हैं. अब यहाँ पे ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के अंदर देयर इज नो फिक्स टूल. हो सकता है कि वैल्यू स्क्वायर में चली जाए, हो सकता है वैल्यू किसी और उसमें चली जाए, और linear हो, मे बी linear नहीं हो, डिपेंड्स. So it says the diagram shows diagrams below show small black, gray, and white triangles. So there are some gray triangles and white triangles. By the look of the figure, मैं gray triangles आपके लिए बना देता हूँ जो मुझे नजर आ रहे हैं कि जो ग्रे होने चाहिए. आई थिंक इसी तरीके से है. और इसके बाद भी ग्रे होंगे, ये काफी जगह पे नजर आ रहे हैं ग्रे. फिर तो फिगर देख के वैसे ही हमें आइडिया हो जाता है, बट चलें अभी के लिए अगर हम ये वैल्यूज देखें. नाउ फॉर दीज वैल्यूज इट सेज द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच डायग्राम. ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है. नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब स्मॉल ट्रायंगल्स की बात करते हैं. सो स्मॉल ट्रायंगल्स फर्स्ट फिगर के अंदर इट्स 1, सेकंड फिगर में इट्स 2, थर्ड फिगर में इट्स 9, सेकंड फिगर में इट्स 4, थर्ड फिगर में इट्स 9, फोर्थ में इट्स 16, फाइव में इट इज 25. दिस इज P1, P1 बुक 1. और फोर्थ में इट्स 16, फाइव में इट्स 25, सिक्स में इट हैज टू बी 36. सिक्स में इट हैज टू बी 36 बिकॉज अगर आप नोटिस करें स्मॉल ट्राइंगल्स आर बेसिकली स्क्वायर ऑफ द एन वैल्यू. सो अगर वो पूछ नहीं रहे वैसे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मुझे पता करना भी होता तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये एन स्क्वायर है. ऑल्दो दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट, बट स्टिल एन स्क्वायर. नेक्स्ट ब्लैक ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ब्लैक ट्राइंगल्स हैं 1 3 5 7 9. So with that value, I get the answer as 11. So 1 3 5 7 9 11. Now with 11, again वो पूछ नहीं रहे, बट हम इसके लिए सीक्वेंस बना सकते हैं. मैं अभी नहीं बना रहा सीक्वेंस. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसका सीक्वेंस ऐसे बन जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी से.
उससे इसका सीक्वेंस बन जाएगा। अच्छा, अब फिर हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में देखिए आप क्या वैल्यूज आ रही हैं, उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ग्रे ट्राइंगल्स के लिए द स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, देन द वैल्यू इज 1, देन द वैल्यू इज 3, देन इट इज 6, एंड देन द वैल्यू इज 10। इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई हैं। 0 गिवन है, 1 गिवन है, 3 गिवन है, उसके बाद और वैल्यूज गिवन है। अब इसके आगे देख लेते हैं। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि इसमें 1 ऐड हो रहा है, देन आई कैन सी के नेक्स्ट वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है, देन 3 ऐड हो रहा है, देन 4 ऐड हो रहा है। सो विद दैट लॉजिक नेक्स्ट वैल्यू में 5 ऐड होना चाहिए, दैट मेक्स इट 15। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आफ्टर दिस इट सेज दी वाइड ट्राइंगल्स। अब वाइड ट्राइंगल्स के अंदर क्या होगा? वाइड ट्राइंगल्स के अंदर अब ये और डिफरेंट आ रही है वैल्यू। दिस इज 0 पे 0, 0 ऐड हो रहा है पहले, फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है, देन 2, देन 3, देन 4। इस तरह से वैल्यूज ऐड हो रही हैं। पहले 0 ऐड हो रहा है इसके अंदर। So basically the first sequence starts from 1 2 3 4 5 इस तरह से, and the second sequence starts from 0 1 2 3 4। nth term formula for ग्रे टाइल डायरेक्टली नहीं निकल सकता, वो तो क्वाड्रेटिक के थ्रू आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू आएगा। उस पर हम बात करते हैं। पहले इस वाले पार्ट पर आ जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो हमने डायग्राम तो कंप्लीट कर ली। अब लिखा हुआ है राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इन डायग्राम n। अब वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल ट्राइंगल्स इन डायग्राम एन कैसे बन सकते हैं। तो स्मॉल इन डायग्राम एन विल जस्ट बी एन स्क्वायर, सिंपल। दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज एन स्क्वायर। अच्छा, फिर उसके बाद पूछ रहे हैं ब्लैक ट्राइंगल्स इन डायग्राम एन। ब्लैक ट्राइंगल्स के लिए मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला लिख के दिखाया, बट मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। सो ए हो जाएगा 1 विच इज द फर्स्ट टर्म, एंड देन इट्स n-1, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका 2। सही है। So your answer is 2n-1. This is the situation for black triangles. So black triangles के लिए जो उनको formula चाहिए, that will be 2n-1. This is the answer. Clear? One second. अच्छा, उनको इसके लिए फॉर्मूला चाहिए ही नहीं था। ठीक है, बस तो फिर उन्होंने इतना ही पूछा हुआ था, हमने इतनी वैल्यू निकाल दी। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दैट इज राइट डाउन द सेवेंथ लाइन। चलें, सेवेंथ लाइन तो आप लोगों ने बता दिया आई गेस। लुक एट दिस पैटर्न, इसकी फर्स्ट लाइन के हिसाब से ये वर्किंग कर रहे हैं। सेवेंथ लाइन में फिर ये होना चाहिए, सही है। सो 4 × 7। ओके, एंड देन देर आस्किंग फॉर द nth लाइन ऑफ द पैटर्न। तो nth लाइन के लिए हमें क्या करना चाहिए? nth लाइन वाली सिचुएशन के लिए आई शुड बी वर्किंग विद, सो आई विल सी दिस वैल्यू। सो फर्स्ट लाइन के अंदर दिस इज गिवन एज 2। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट लाइन के अंदर दिस इज गिवन एज 2, ठीक है। सेकेंड लाइन में दिस इज गिवन एज 3। मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है, दिस इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू n+1, राइट? दिस इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू n+1, क्योंकि आप पहली लाइन के अंदर अगर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट हैज जंप्ड 1 यूनिट अप, राइट? पहली लाइन में अगर ये 2 लिखा हुआ है, दैट मींस दिस हैज जंप्ड 1 यूनिट अप। एंड इन द फर्स्ट लाइन अगर ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड यूनिट विच इज n-1। इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? सो एक बात तो क्लियर हो गई, वो ये कि दिस विल बी n+1 होल स्क्वायर, दिस विल बी n-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो पूरे केस में है, सो देर इज वन वैल्यू विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल दिस, विच इज 4। ये तो पूरे केस में कांस्टेंट है। सो मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी वैल्यूज हैं वो n के साथ चल रही हैं। सो इफ n इज 1, दैट वैल्यू इज 1। मतलब फर्स्ट टर्म में इट इज 1,
सेकंड टर्म में इट्स 2, थर्ड टर्म में इट्स 3, फोर्थ टर्म में इट्स 4, फिफ्थ टर्म में इट विल बी 5, सिक्स टर्म में इट विल बी 6, सेवंथ टर्म में इट विल बी 7। तो nth टर्म में क्या होगी? n। nth टर्म में इट विल बी n, सिंपल। या बिल्कुल सही है। So they're saying use the pattern to find 521 minus 519 square. 521 square minus 519 square। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अब ये वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 521 स्क्वायर माइनस 519 स्क्वायर के अंदर आई विल स्टार्ट विद, देखिए अब मुझे यहां पे वही देखना पड़ेगा, वो ये कि फर्स्ट टर्म में ये 2 लिखा हुआ था, सो दैट मींस द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर एक्सप्रेशन इज एक्चुअली वन वैल्यू अहेड ऑफ द वैल्यू दैट वी नीड टू कैलकुलेट। मतलब अगर ये 521 लिखा हुआ है तो मुझे बात समझ आ रही है कि अच्छा ये 520th टर्म होगी। दिस मस्ट बी द 520th टर्म। इज दैट क्लियर? दिस मस्ट बी द 520th टर्म। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू का आंसर डायरेक्टली निकाला जा सकता है बाय डूइंग 4 into 520। ये स्टेप देखिए, मुझे बताएं किस किस को क्लियर नहीं है स्टेप, ये समझ आ गया? एक्सप्लेन पार्ट बी अगेन। बी मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। आप बी की वैल्यू देखिएगा प्लीज जरा। बी की वैल्यू के केस में देखें ये लिखा हुआ है 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये आपकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू होती है 1। यहां पर आपको कहीं भी 1 नजर आ रहा है? मतलब पहली वैल्यू में नहीं। यहां लिखा हुआ है 2। 2 कैसे बना होगा? 2 बना होगा n+1 होके। अच्छा वैसे तो 2 बन सकता है 2n से भी, लेकिन आप नीचे वाली वैल्यू देखें ना, सेकंड केस में इट इज 3, इन द थर्ड केस इट इज 4। मतलब आपके पास जो सीक्वेंस बन रहा है दिस इज वन मोर देन द n वैल्यू दैट वी हैव। दिस इज वन मोर देन द वैल्यू दैट वी हैव। मतलब अगर आपके पास यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 बन रहा होगा 1+1 से। ये बन रहा है 2+1 से। दिस इज 3+1, दिस इज 4+1। इसी तरह से ये जो वैल्यू है दूसरी 0, ये बन रही है n-1 से। दिस इज n-1, दिस इज 1-1, 2-1, 3-1, 4-1। ये क्लियर है बात? अच्छा विद दैट लॉजिक फिर आप ये पूरा सीक्वेंस देखें 1 2 3 4। सो दिस इज n, 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 n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4। समझ आई बात? क्लियर हो गया? सो अब मैं पार्ट सी का आंसर इसी लॉजिक से निकाल रहा हूं कि अगर यहाँ 521 लिखा हुआ है, 521 इज एक्चुअली वन वैल्यू अहेड ऑफ द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। ये एक वैल्यू आगे है। एक वैल्यू आगे होने का मतलब आई एम लुकिंग फॉर 520th वैल्यू। सो 520th वैल्यू कैसे मिलेगी? 4 multiplied by 520 विच इज इक्वल टू 2080। ये क्लियर है बात? समझ आ गया इतना? एनी कंफ्यूजन? नो? चलें ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, या इसमें एक पार्ट और भी है। यूज द पैटर्न टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई। Use the pattern to find the positive integer x and y such that x square minus y square is equals to 484। देखें आप इसको ऐसे लिख के करें सॉल्व या नहीं करें, बट टू गिव यू एन आइडिया हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमने निकालना क्या है। देखें आपके पास एक्सप्रेशन बना हुआ है, एक्सप्रेशन ऐसे बना हुआ था।
ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप राइट हैंड साइड पे वर्किंग कर लें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 484 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ n एज 121। ये आसान है ना? अब एक दफा n आ गया तो बाकी वैल्यू तो निकालना कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं यूज द पैटर्न टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y, सो दैट्स इजी। बिकॉज x कैसे बनना चाहिए? x बनना चाहिए n+1 से। अच्छा, y कैसे बनना चाहिए? y बनना चाहिए n-1 से। सो n+1 मतलब 121+1, और n-1 मतलब 121-1 which is equal to 120. So this is 121 and 120. So we get the x value as 122 and we get the y value as 120. ये देखें, सब सीक्वेंसेस का वो है कि आप सीक्वेंस कैसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट बात वो है। समझ आ रही है बात? तो कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। सो विद दिस the first four terms are given in a sequence of numbers are given, ठीक है। अब वो again we have to see कि किस sequence से values चल रही हैं। They're saying evaluate U5. So I can see this is 1 2 3 4, तो U5 की starting value 5 होनी चाहिए। The next multiplicative value is basically an increment of one value in the previous value. उससे मुझे एक बात समझ आ रही है, वो ये कि next value यहाँ 6 होनी चाहिए। After that there is another increment of another value that gives me the answer as 7. So ये सीक्वेंस होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, उस सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम वैल्यूज देखें तो फिर वो हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास? ऑलराइट, 79। मतलब ये वैल्यू डिफरेंस आ रहा है 11 का, फिर उसके बाद ये डिफरेंस आ रहा है 15 का, और 15 के बाद ये नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए 19 का। ऐसे ही हो रहा है ना? बिल्कुल सही है। सो ये काफी जगहों से कनेक्टेड होता है एक एक्सप्रेशन, नॉट नेसेसरी कि वो आपको सिर्फ लेफ्ट पे लगे कनेक्टेड है राइट पे। इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन ही कनेक्टेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट दे आर सेइंग राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म un ऑफ द सीक्वेंस। सो द nth टर्म un ऑफ द सीक्वेंस। अब un के लिए मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, तो un का एक्सप्रेशन है वो मुझे नजर आ रहा है। आप अगर एक्सप्रेशन देखें तो we started with n, it got multiplied with n+1, and then n+2 का स्क्वायर was added to it। ये एक्सप्रेशन देखें, मुझे बताएं, बात समझ आई? n represents 1 multiplied by n+1 that represents 2, plus n+2 का होल स्क्वायर is being represented with this, वो थ्री वाली वैल्यू जो लिखी हुई है। So it is n square plus n plus n square plus 4n plus 4। मतलब अगर आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन लिखना है तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n² plus 5n plus 4। इतनी बात क्लियर है? क्या यहां से आ रहा है ना बेटा? ये n है, ये 4n है, तो दिस बिकम्स 5n। क्लियर? ओके, ये स्टेप बाद में करना था एक्चुअली, मैंने ये पार्ट देखे बगैर कर दिया। इज इट n गेटिंग स्क्वायर्ड? यस इट इज। बट n मल्टीप्लाई हो रहा है n से, becomes n square, then n gets multiplied with 1, that makes it n। ये भी तो है। n+2 होल स्क्वायर है ये, इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
So the last value is, वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. The answer for that value is this 2n square plus 5n plus 4. That's the value. उन्हें पहले से ही पता है. Clear है बात? Series of shapes made of matchsticks is shown below. Draw shape 4. So shape 4 के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं नीचे अभी 3 4, तो इसमें अब आप खुद से नोटिस कर लें. दिस इज 3 4 5, तो नेक्स्ट शुड बी 6 यूनिट्स. अरे छोड़ना फिर. 2 3 4 5 6. इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए. या वो मैं करे वो. Alright, so then it says the table shows the number of matchsticks used to make shape 1 and 2. Complete the table for shape 3. सही है. Shape 3 के लिए आपका आंसर क्या आया था? अब अगर ये 12 given है first value, then the next value is given as 18. So we can obviously count for the third shape. और फिर उसके बाद fourth तो वैसे ही निकाल लेंगे. So पहले का 12 है, दूसरे का 18 है, उसके बाद 24 आ रहा है shape 3 के अंदर. And then obviously if you add another 6 to it, तो it again the answer has 30. बिल्कुल सही है. Next, find an expression in terms of n for the number of matchsticks used to make shape n. So the number of matchsticks used to make shape n. ठीक है. So shape n के लिए I can see कि ये जो difference आ रहा है ये +6 का है. So ये अगर 6 का difference है and the value is a plus n minus 1 into d. पहली value है 12, then it is n minus 1 into 6. तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 6n + 6. बिल्कुल सही है. Explain why there is not a shape that is made up of 100 matchsticks. Well, that's very simple. क्योंकि आपके पास इस आंसर में क्या कभी टोटल 100 आएगा, ये हमें चेक करना है. बिकॉज 100 मैचस्टिक्स क्या किसी एक शेप में यूज हो सकती हैं. टू चेक दैट क्लेम आप 6n + 6 को 100 से इक्वेट कर दें. So we get the value as 94. Now, is it possible to get a value of 94 by dividing the value by 6? क्या हमारे पास कोई n की वैल्यू आएगी? कीपिंग इन माइंड के n हमेशा इंटीजर में पॉजिटिव होना चाहिए. इट कांट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू. क्या इस सिचुएशन के अंदर हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा? फ्रैक्शन में मिलेगा. 94 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकता. So since we can't divide the value and obviously the answer will be a decimal, hence no term or no shape possible with 100 sticks. That's not possible. ये बात समझ आ गई है? इतना क्लियर है?